سبجیکٹ میٹر تو ہے، اس لیے I'll try کہ میں جتنا اختصار کے ساتھ بیان کر سکوں. جو ایک آنریبل ڈپٹی چیئرمین نے بھی باتیں کی ہیں، ایک تو میں وہ کلیریفیکیشن بھی کرنا چاہتا ہوں. لاسٹ ٹائم جو اسٹیٹمنٹ دی تھی، بالکل 2 لوگ میں نے کہا تھا آپ کی جو جتنی ڈیتھس بتائی ہیں اس میں سے 2 لوگ ہیں جو نیب کی فزیکل ریمانڈ کے اندر جن کی ڈیتھ ہوئی تھی. تو ان کا فتح ہم نے پروو کیا ہے. ایک سجاد صاحب ہیں جو 2004 میں ہوئے تھے اور ایک 2014 میں رزاق بھٹی. تو یہ امپریشن دینا کہ ابھی کچھ ہوا ہے یا ریسنٹ ٹائم میں، وہ غلط ہے. بریگیڈیئر اسد مجید صاحب کی جو سوسائڈ ہے، بڑا انفارچونیٹ ہے کسی کی بھی سوسائڈ کرنا، لیکن اس کو نیب کے ساتھ منسوخ کر دینا میں سمجھتا ہوں بڑا ایک جنرل اسٹیٹمنٹ تو ہو سکتی ہے، اسپیسیفک تو یہی ہو سکتا ہے کہ پھر ان کی سوسائڈ کے اندر ڈپٹی صاحب تشریف رکھیں، اگر وہ بات کر رہے ہیں اس کے بعد کریں گے. ٹھیک ہے تشریف رکھیں سر. اس کے لیے تو بہتر یہی ہوگا، بالکل ان کی وائف اور بیٹی کہہ رہی ہوں گی، لیکن اس کے لیے تو بہتر یہ ہوگا کہ پھر ان کی سوسائڈ کے اوپر ایک پروب کرا لیا جائے کہ ان کی سوسائڈ کے کیا محرکات تھے، وہ دیکھ لیا جائے. اس کو یہ کہہ دینا کہ وہ کہہ رہے ہیں تو پھر اس کو یہاں پہ موضوع بنانا، اور ایشو یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا اب یہ 2 ڈیتھس تو ہوتی ہیں 2004 میں اور 2014 میں، لیکن اب وہ نیب کی ڈیتھس جو ہیں وہ ریلیونٹ اب آگے کیوں ہو جاتی ہیں؟ ہمیں اس چیز کو بھی دیکھنا بڑا ضروری ہے، کیونکہ کیا وہ ریلیونس اس لیے ہے کہ کسی آنریبل ممبر کو ایک نوٹس وصول ہو گیا، یا اس لیے ہو گیا کہ فریزنگ آرڈر اکاؤنٹیبلٹی کورٹ سے ایشو ہو گئے، یا اب ریفرنس فائل ہو گیا. تو ان چیزوں کو ہولسٹکلی دیکھنا چاہیے اگر اس کی ڈیبیٹس ہاؤس میں کروانا چاہتے ہیں یا انڈیویجول کی پروب کرانا چاہتے ہیں. اور اگر ان کے خاندان والوں کو یہ ماننا ہے کہ وہ تھریٹ تھا تو وہ بھی ان کے پاس لیگل ریکورس تو اویلیبل ہے. دوسرا جناب چودھری، ایک ایشو تو یہ ہے کہ اب جو ایک اسپیسیفک ریفرنس ہے وہ تو ایک سب جوڈس میٹر ہے، اس کی بہتر فورم تو وہ کورٹ ہی ہے. مجھے پہلے بلایا بھی گیا تھا کیونکہ براڈ شیٹ کو لے کے کچھ باتیں یہاں پہ ہوئی، کچھ سوال بھی اٹھائے گئے، تو اس کے لیے میں 2-3 چیزیں گزارش کرنا چاہتا ہوں اور ہاؤس کے ریکارڈ پہ بھی 3 چیزیں رکھنا چاہتا ہوں. ایک تو کچھ 2-3 دنوں کو لے کے یہ پوری کنٹروورسی چل رہی ہے، اس کی سب سے بڑی ایک وجہ کیا ہے، یا بہت سارے سوالات کیے جا رہے ہیں کہ آپ کے پاس کوئی اس کا اصل چیز اویلیبل نہیں ہے. وہ لائبلٹی ایوارڈ ہے، وہ اویلیبل نہیں تھا، پبلکلی اویلیبل نہیں تھا، کیونکہ آربیٹریشن پروسیڈنگز تھی 2 پارٹیز کے مابین ہیں، وہ پبلک نہیں کی جا سکتی. لیکن جب یہ بات ایک ایشو بنا تو سب سے پہلے پرائم منسٹر نے یہ انسٹرکشن دی کہ ہم اپنے لائر سے رابطہ کریں، براڈ شیٹ کے لائر سے، اور اسے پبلک کیا جائے. تو ان کی طرف سے ہمیں جب کنسنٹ آ گئی تو آج صبح میں اس سے پہلے پریس کانفرنس بھی کر چکا ہوں، 3 آرڈرز کو پبلک کر دیا گیا ہے. ایک تو پہلے ہی پبلک ڈومین میں تھا کیونکہ ہائی کورٹ کی آرڈر تھا، لیکن لائبلٹی کا ایوارڈ جو آربیٹریٹر کا ہے سر اینتھونی ایونز کا لندن کا، وہ بھی پبلک کر دیا گیا ہے، وہ میں ہاؤس کے ریکارڈ پہ بھی لے آتا ہوں. اور اس کے بعد جو کوانٹم کی پروسیڈنگز ہیں ان کو بھی پبلک کر دیا گیا ہے. اب اس تمام کنٹروورسی کو لے کے، اور 2 سوال میرے آنے سے پہلے مجھے لکھ کے بھیجے گئے تھے، میرا خیال ہے میں بتا دیتا ہوں تاکہ ایک سوال اٹھایا گیا ہاؤس میں کہ جو پیسے ہیں وہ کیوں ریلیز کیے گئے یا براڈ شیٹ کو کیوں پیسے دیے گئے. اور دوسرا یہ ہے کہ ایک پیمنٹ پہلے بھی کی گئی 1.5 ملین کی، جو کہ اب سامنے آیا ہے کہ غلط لوگوں کی ہوگی، تو وہ کیوں کی گئی. دونوں کے لیے ہاؤس کے ریکارڈ کے لیے ایک ٹائم لائن بڑی امپورٹنٹ ہے جناب اسپیکر، جناب چیئرمین. ٹائم لائن یہ قصہ شروع ہوتا ہے مئی 2000 سے، جہاں سے براڈ شیٹ اور انٹرنیشنل ایسٹ ریکوری 2 کمپنیز کو انگیج کیا جاتا ہے اس وقت کے نیب میں. اس وقت حکومت جو ہے وہ جنرل پرویز مشرف کی ہے، پی ٹی آئی تو کہیں پہ بھی نہیں ہے. مئی 2000 کے بعد دسمبر 2000 میں نواز شریف صاحب ایک ڈیل کے تحت پاکستان چھوڑ کے باہر چلے جاتے ہیں. وہ سعودی عرب چلے جاتے ہیں، سرور پیلس چلے جاتے ہیں. یہ معاہدہ کنٹینیو کرتا ہے، لیکن اس ڈیسیجن کے تحت یہ آگے چیز ریلیونٹ آئے گی کہ یہ کیوں ریلیونٹ فیکٹ ہے. 2003 میں انٹرنیشنل جو اب یہ AIR ہے اور براڈ شیٹ دونوں کے ساتھ معاہدہ نیب منسوخ کر دیتا ہے. اس وقت بھی پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نہیں ہے. اس کے بعد اگلی ریلیونٹ ڈیٹ ہے 2008 کی، کیونکہ 2007 میں یہ دونوں کمپنیاں حکومت پاکستان کو نوٹس دیتی ہیں آربیٹریشن کا کہ آپ کے واجب ہمارے کچھ بقایا جات آپ کے واجب الادا ہیں، وہ آپ ادا کر دیجئے. 2008 میں پیمنٹ کر دی جاتی ہے ایک سیٹلمنٹ کے تحت 2.25 ملین کی IAR نامی کمپنی کو، اور مئی 2008 میں
दूसरा सेटलमेंट एग्रीमेंट होता है ब्रॉड शीट के साथ। 2008 में उस वक्त हुकूमत, आई थिंक इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, गिलानी साहब वज़ीर आज़म पाकिस्तान थे। बाद में ये पता चलता है 2009 में एक नया नोटिस वसूल होता है हुकूमत पाकिस्तान को कि पेमेंट आपने हमारा पैसा देना है, आप हमारा पैसा दे दीजिए वरना आर्बिट्रेशन के लिए आ जाएं। उस वक्त हुकूमत कहती है हम तो पैसे अदा कर चुके हैं। फिर ये चीज़ यहाँ होती है कि किसी गलत कंपनी को, गलत शख्स को पैसे अदा कर दिए गए जो कि $1.5 मिलियन के हैं। उसके बाद मामला आगे चलता है। सन 2009 से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, आर्बिट्रेशन की प्रोसीडिंग्स का आगाज हो जाता है, उसमें काफ़ी खतो खताबत होती है। इवेंचुअली जनाब चेयरमैन, लाइबिलिटी अवार्ड की जो लाइबिलिटी मुकर्रर की जानी है कि किसका कसूर बनता है, आया ब्रॉड शीट का मौक़िफ़ दुरुस्त है या हुकूमत पाकिस्तान या नैब का मौक़िफ़ दुरुस्त है। तो उसके लिए जो हेयरिंग होती है वो भी डेट बड़ी रेलेवेंट है, वो जनवरी 2016 में होती है। जनवरी 2016 में इसकी हेयरिंग होती है लंदन में और हुकूमत पाकिस्तान जाकर अपना मुकदमा लड़ती है। उधर से ब्रॉड शीट के लोग आते हैं, पाकिस्तान में हुकूमत है मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब। उसके बाद जनाब चेयरमैन इसका अवार्ड आ जाता है अगस्त 2016 में। उस वक्त भी हुकूमत मुस्लिम लीग नून की है, नवाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म हैं, अवार्ड भी आ जाता है। और ये अवार्ड उस वक्त हुकूमत पाकिस्तान के कहने के ऊपर पब्लिक नहीं किया जाता। हम दरख्वास्त करते हैं कि इसको प्राइवेट रखा जाए। ये बड़ी इंपॉर्टेंट डेट्स हैं। उसके बाद ये तय किया जाना है कि कितना इनको पैसा अदा किया जाए, क्योंकि ये तो तय हो गया कि इनका पैसा बनता है। उसकी प्रोसीडिंग्स भी 2016 से लेकर 2018 तक होती हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत है, अटॉर्नी जनरल ऑफिस इसको कंडक्ट कर रहा है। 2018 में इंतखाबात से पहले लाइबिलिटी की जो हेयरिंग्स हैं वो मुकम्मल हो जाती हैं और लाइबिलिटी भी मुकर्रर कर दी जाती है। उसके बाद अपील जो है वो केयर टेकर दौर में फाइल की जाती है उस ऑर्डर के खिलाफ हाई कोर्ट की फोरम पे लंदन में। उस अपील का फैसला 2018 के आखिर में आ जाता है। अब ये तो टाइमलाइन होगी जनाब चेयरमैन। अब इस जो दो चीजें थी जिनको उस वक्त ये हुकूमत वक्त के कहने के ऊपर खुफिया रखा गया, उन फैसलों में था क्या? अगर आप उस लाइबिलिटी के फैसलों को देख लें तो ये चीज बिल्कुल रोज रोशन की तरह अया हो जाएगी। जो मुद्दा था इस पूरे केस के में ब्रॉड शीट का और हुकूमत पाकिस्तान का, ब्रॉड शीट ये कहता था कि हुकूमत पाकिस्तान में नैब ने हमें इंगेज किया एसेट ट्रेस करने के लिए और 200 लोगों का टारगेट दिया और एक एग्रीमेंट किया। वो एग्रीमेंट अच्छा था बुरा था उस पर हम बहुत बहस कर सकते हैं। हम भी कहते हैं उसको देखा जाना चाहिए कि क्या उस वक्त वो एग्रीमेंट ठीक हुआ, क्या उसके बाद वो एग्रीमेंट की टर्मिनेशन ठीक तरीके से की गई, पाकिस्तान का इंटरेस्ट वॉच किया गया और उसके बाद क्या हुआ। ब्रॉड शीट का ये कहना था कि आपने ये हमारा एग्रीमेंट खत्म किया लेकिन आपके जिम्मे पैसे बनते हैं। पाकिस्तान कहता था आपके जिम्मे हमारे जिम्मे कोई पैसे नहीं बनते। ये एक आर्बिट्रेटर के पास लंदन में चले जाते हैं जो उस मुआहदे के मुताबिक था। सर एंथनी एवंस जो हैं वो आर्बिट्रेटर मुकर्रर होते हैं। उसकी फाइंडिंग्स बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। जो जजमेंट आज पब्लिक की गई है उसकी फाइंडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। एक जो सबसे इंपॉर्टेंट फाइंडिंग है उसकी, वो ये कहते हैं, और ये बड़ा जरूरी है इसको समझना, कि आपने सबसे पहले, ये आपका कसूर है रियासत पाकिस्तान का कि आपने कोई डील की। क्योंकि सन 2000 में जब आपने दिसंबर में मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को पाकिस्तान से सऊदी अरब जाने दिया तो उनको एक डील के तहत जाने दिया। ये हम नहीं कह रहे, ये यहाँ की कोई जेटी नहीं कह रही, ये एक लंदन का आर्बिट्रेटर कह रहा है जिसको वैलिडेट करता है लंदन का हाई कोर्ट। और उस डील के नतीजे में जिस किसी के साथ आपने डील की, उस डील के नतीजे में जो ये कंपनी है इसको एक ऑनेस्ट अर्निंग जो थी उसको लॉस हुआ। फिर उसके वो आर्बिट जो उसकी क्वांटिटी की क्वांटम की डिसीजन है उसके अंदर उसके वो दो हिस्से मुकर्रर करता है। एक हिस्सा वो मुकर्रर करता है कि $100 मिलियन की जो है $100 मिलियन जो 16 अरब रुपया बनता है, वो उसका हिस्सा मुकर्रर करता है किसके खिलाफ। और ये बड़ी एक इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है जनाब चेयरमैन। ये इस क्वांटम की जो डिसीजन है, ऑर्डर है, इसके सफा नंबर 63 के ऊपर
सेक्शन 8 में कॉन्ट्रेक्चुअल डैमेजेस का है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है जो ये बताता है कि ये पैसे किसकी मद में हमने अदा करने हैं। ये सवाल किया गया कि क्यों पैसे अदा कर रहे हैं, किसकी मद में अदा करने हैं। इसमें 6 लोगों का नाम लिखा हुआ है ऊपर, और आगे लिखा हुआ है कि उनकी मद में कितनी 20% इसका हिस्सा बनता है। एक नाम है शॉन ग्रुप, $48,760, लखानी $25,000, फौजी काजमी $85,000, जनरल जायद अली अकबर $3,81,000, शेपाव $2,10,000, अंसारी $1,80,000, $1,58,000। ये कुल मिला के $1 मिलियन बनता है जो उसको अदा करना बताया गया कि ये इनका हिस्सा बनता है 20%। इसका मतलब है 80% आपने रिकवरी कर ली। दूसरा जो इसका हिस्सा दिया गया, क्योंकि टोटल अवार्ड होता है $21.5 मिलियन का। दूसरा अवार्ड है शरीफ एवनफील्ड। अब मैं कोई अपना लफ्ज नहीं ऐड कर रहा, ये इसमें से कहा हुआ, इसमें साफ लिखा हुआ है शरीफ, आगे ब्रैकेट में एवनफील्ड $1.5 मिलियन। ये हिस्सा है 20% जो आपने अदा करना है अभी ब्रॉडशीट को। क्यों? क्योंकि उसने आपको 2000 में भी एवनफील्ड के सबूत ला के दिए। वो एवनफील्ड फ्लैट जिसको आप आज भी नहीं मानते कि हमने 2000 में लिया था, जबकि आप 90 से ये रिकॉर्ड किया है कि उसके ऊपर आप रह रहे थे। दूसरा है शरीफ अदर एसेट्स। अदर एसेट्स में $19 मिलियन की लायबिलिटी डाली गई जो 20% बनाया गया। और ये $21.5 मिलियन की टोटल लायबिलिटी थी। टोटल पेमेंट अभी हमने $29 मिलियन की है। बाकी इसके ऊपर इंटरेस्ट देना पड़ा है आपको, क्योंकि आपने ये इतने साल केस नहीं निपटाया उनके साथ। 21.5 मिलियन में से जो 20.5 मिलियन वो सिर्फ शरीफ खानदान के असासों का आपको अदा करना पड़ा। कब? 2016 में लायबिलिटी की डिसीजन आई, क्वांटम 2018 में आया। उसके बाद अपीलेट प्रोसेस चला, 31 दिसंबर 2020 को पैसे अदा किए गए, क्योंकि अगर अब भी इनको पैसे अदा न करते तो आपके पास कोई फोरम नहीं रह गया था अपील करने का, और आपके पाकिस्तान के जो असासे बाहर थे वो भी मंजूमंद वो करवा सकते थे डेट करने के लिए। और $5,000 जो है वो डेली की बुनियाद के ऊपर इसके ऊपर इंटरेस्ट भी मुकर्रर कर दिया गया था। और जनाब चेयरमैन, ये सिर्फ यहां पे नहीं रुकता। ये जो आज डॉक्यूमेंट पब्लिक कर दिया गया है, इसके अंदर एक और बहुत ज्यादा हमारे यहाँ रवायत चली है कि जी हम JIT को नहीं मानते, हम पनामा की डिसीजन को नहीं मानते, हम सुप्रीम कोर्ट के इस डिसीजन को नहीं मानते, उसको मानेंगे। शॉपिंग हो रही है। इसके अंदर स्ट्रॉस फ्रीडबर्ग एक्सपर्ट एविडेंस प्रोड्यूस किया गया। उसके ऊपर रिलाय करके आर्बिट्रेटर कहता है कि उसने फोरेंसिक ऑडिट किया है JIT रिपोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट का, और उस फोरेंसिक ऑडिट के तहत जो शरीफ खानदान की लायबिलिटी है, जो कि इल गॉटन मनी है, वो $820 मिलियन है। $820 मिलियन है। ये उस ऑर्डर के अंदर लिखा हुआ जो हमसे 4 दिन से पूछ रहे थे कि इसको पब्लिक करो, हमने कर दिया पब्लिक। अब ये गुनाह भी हमारे हिस्से में लिख लें। 820, मैं झूठ नहीं बोल रहा, आप ये ले लें, कागज ले लें और ले चले हमें किसी भी फोरम के अंदर। तो ये जनाब चेयरमैन, ये है ब्रॉडशीट की हकीकत। और उन्होंने कहा कि हम अभी आपको ये 820 मिलियन का इसके ऊपर नहीं हर्जाना डाल रहे, वरना पाकिस्तान को जो डिमांड कर रहा था ब्रॉडशीट, वो 160 मिलियन इसका हिस्सा मांग रहा था 20% के हिसाब से। हमारा कसूर तो ये है कि हम आपका किया हुआ बुरा जो है वो भुगत रहे हैं। ब्रॉडशीट में भी आप ही जजमेंट को छुपा के चले गए थे। ब्रॉडशीट में 2016 में जब लायबिलिटी डिटरमिन होनी है, ये तय करना है कि आपने ये किया किस लिए है, तो उस वक्त जो उसको डिफेंड कर रहा है, ये देखें, ये कितनी खूबसूरत बात है कि इधर मुकदमा लड़ा, मुद्दा है मुकदमे का क्या, शरीफ एसेट्स। लड़ कौन रहा है? हुकूमत पाकिस्तान हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ। इससे बड़ा हमारे साथ क्या मजाक हो सकता था? तो ये वो मजाक है। और जनाब चेयरमैन, ये है कीमत MRO की, डील्स की। हमसे भी एक ऐसी डील मांगी गई, 34 शिकायत लेके आ गए कि उसके साथ डील कर लें। आज हम कर लेते, कल कौम को फिर आगे पता नहीं कितने $मिलियन अदा करने पड़ते। तो जनाब चेयरमैन, ये हकायक रिकॉर्ड पे लाना बड़े जरूरी थे।
आपके सामने पेश कर दी है। थैंक यू।